और मेरे पढ़ाकू बच्चों, क्या हो रहा है? इन दिस पार्ट 3 ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, द टेस्टोस्टेरोन, its synthesis, its production, its regulation, and its function. So just to remind you whatever we have discussed in the last sessions, this is just to go through the picture and just remind everything: the testes, the epididymis, the vas deferens, and then the seminal vesicles, the gland, and the prostate, and the bulbourethral gland, and the prostatic urethra. Everything you just remind yourself whatever we have discussed in the last chapters, है ना? टेस्टिस के बारे में we have discussed about the testis having two kinds of cells. One is the Sertoli cell and one is the Leydig cell. We have discussed, and then this is oval shaped organ, and just this was the section of the testis, just to show you that there is a you can say the seminiferous tubule where the sperms are produced, and then seminiferous tubule से all the sperms are collected to the retitestis. यहाँ पे मैं mark करना चाहूँगा this. From the seminiferous tubule, these are the retitestis. Then again it is going to this part of the epididymis, and then the tail part of the epididymis, and again it's reaching to the vasa deferens or the ductus deferens upside and going to the other parts. And then secretions from the seminal vesicle and the prostate are mixing with this and the bulbourethral gland and making it alkaline so that the sperm can survive. So this was the just revision. And then we have to discuss about the hormonal influence of male reproductive systems. ठीक है, what are the hormones which are giving effect to the male reproductive system, जिसमें बात करेंगे हम लोग की starting from the hypothalamus, है ना? Hypothalamus is releasing the gonadotropin releasing hormone, GnRH. तो gonadotropin releasing hormone, that means GnRH releasing hormone will work on the gonadotropes of एंटीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी में गोनाडोट्रॉप्स थी, वो निकालती, क्या निकालती हैं? FSH एंड LH, दैट मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, तो जब वहाँ से FSH एंड LH निकला तो वो जाके फर्दर इफेक्ट डालेगा नीचे टेस्टिस पे. ठीक है, वो भी अब डिस्कस करेंगे. सो इन द टेस्टिस द LH सिग्नल्स इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ Leydig टू रिलीज द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड अदर मेल सेक्स हॉर्मोन्स, जिसको कि डायड्रोएपिएंडोस्टेरोन जब हम डिस्कस करेंगे अभी. सो वो सब भी निकलता है. दिस इज द जस्ट टू शो द इफेक्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस. देन यू कैन सी द GnRH इज रिलीज फ्रॉम दोज सेल्स. देन पिट्यूटरी, द एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज रिलीजिंग द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ GnRH releasing the FSH and LH, and then it is going to the testicles, and testicles is now the which is known as also as male gonad is releasing the sex steroid hormones, है ना? और वहाँ से एक बात देखने की है, यहाँ पे इनिबिन भी निकलता है. इनिबिन इज secreted from the Sertoli cells. इनिबिन will inhibit the FSH. ठीक है, this is again just to show you the diagrammatic representation. Hypothalamus, GnRH निकाला, एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या निकाला? FSH and LH निकाला, and then the FSH is going to stimulate the Sertoli cells and LH is going to stimulate the Leydig cells or the interstitial cells of the Leydig. We also know the Sertoli cells will release the androgen binding protein that is called ABP, and then the interstitial cells will release the testosterone, and this both together are helping in the spermatogenesis. Okay, so this is the just example, and the regulation of secretion of hormone, this is another picture. Why I am giving too many pictures? Just to make you understand the things easily. इसलिए मैंने बहुत कलेक्शन किया जगह जगह से इंटरनेट पे जाके, जस्ट टू गिव यू द इम्प्रेशन ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना? यहाँ पे भी देखेंगे कि एक देखिए राइट साइड में यहाँ पे इनिबिन जो है वो इनिबिट कर रहा है. ठीक है, इनिबिन इनिबिट कर रहा है टू द FSH, एंड यू कैन सी टेस्टोस्टेरोन. तो क्या हो रहा है यहाँ पे रेगुलेशन में? क्या होता है कि वेन एवर द टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन इज हाई, तो टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ विल गिव द फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें जाके वो उसको अदर हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी को वो सप्रेस कर रहा है, एंड डायरेक्टली टू द हाइपोथैलेमस ऑल्सो इट इज गिविंग नेगेटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस जस्ट टू डिक्रीज द secretion of GnRH. So this is kind of regulation of secretion of testosterone, है ना? पढ़ लेते हैं. Secretion of testosterone from the Leydig cells of fetal testis is caused by the HCG, that is human chorionic gonadotropin from placenta. ठीक है, जब HCG जो प्लेसेंटा से निकल रहा है इन द
फीटल स्टेट, ठीक है। सो जो एचसीजी से जो एचसीजी निकला जो प्लेसेंटा से, वो आके इफेक्ट डाला टेस्टिस पे, बेबी के टेस्टिस पे। तो बेबी टेस्टिस ने क्या किया, शुरू किया, टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू किया। दिस टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर सेक्स डिफरेंशिएशन एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द मेल एम्ब्रियो, ठीक है। तो जो सेक्स डिफरेंशिएशन वाली बात वहाँ पे शुरू हो रही थी, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टिस, एंड टेस्टिस इज सिक्रेटिंग द टेस्टोस्टेरोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एचसीजी विच इज अल्टीमेटली रिलीज फ्रॉम द प्लेसेंटा ओनली, प्लेसेंटा से ही निकला था, ठीक है। एंड आफ्टर बर्थ, जब बेबी पैदा हो गया है, आफ्टर बर्थ टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन डज नॉट अकर अप टू एडोलेसेंस, ठीक है। In the first class we have discussed about introduction कि there is a age called puberty age, ठीक है। So in that puberty age whatever we have discussed कि एक certain influence of the hormones की वजह से वहाँ पे ऐसे हार्मोन निकलना शुरू होते हैं। तो अगेन इन द एडोलेसेंट स्टेज फिर से एक बार ये सिग्नल आते हैं that during adolescence it starts again and continue under the influence of GnRH, फिर से एक बार टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट होता है। अब बात करेंगे इसकी बायोसिंथेसिस, फंक्शंस, रेगुलेशंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। जैसा कि द अदर हार्मोन्स, ऑल द हार्मोन्स, एंड्रोजन हार्मोन्स, सो द हार्मोन्स विच स्टिमुलेट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एंड्रोजेंस। एंड्रो मीन्स यहाँ पे मेल से मतलब है, जैसे गाइनी मीन्स फीमेल्स, एंड्रो मीन्स मेल्स। एंड्रोजेंस मतलब जेनेटिक यानी कि मेल साइकी को डेवलप कर रहे हैं या मेल पैटर्न को डेवलप कर रहे हैं, दैट्स वाई दीज हार्मोन्स आर नोन एज एंड्रोजेंस। Some androgens are secreted from the suprarenal cortex, but the testes are the main source. Suprarenal cortex हमने जब पढ़ा था एंडोक्राइन में, तो वहाँ पे भी देखा था कि कोलेस्ट्रॉल वाज द बेस। कोलेस्ट्रॉल से ही वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होकर वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भी निकला था, वहाँ पे एस्ट्रोजन भी निकला था। वी हैव सीन, अगर आपको वो देखना हो तो लेक्चर आपको फिर से देखना पड़ेगा, द सुप्रारीनल कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद बात करते हैं, द एंड्रोजेंस आर स्टेरॉइड हार्मोन्स हैविंग 19 कार्बन एटम्स इन देम विद हाइड्रोक्सिल एट 17। तो जो हम लोग जो नॉमेनक्लेचर होता है वहाँ पे 1 2 3 4 गिनते हैं, तो एट द 17th कार्बन वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है। बिकॉज ऑफ दिस द स्ट्रक्चर हैज़ बीन चेंज एंड द फंक्शन हैज़ बीन चेंज। सो 19 कार्बन एटम विद हाइड्रोक्सिल एट द 17 कार्बन। द मेन हार्मोन्स आर टेस्टोस्टेरोन एंड इट्स डेरिवेटिव्स डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। The other androgens secreted in small amounts are dehydroepiandrosterone and the androstenedione। कम इंपॉर्टेंट है। तो मेन हार्मोन कौन सा हुआ, टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द लीडिक सेल्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सर्टोलाइज सेल्स। सर्टोलाइज सेल्स जो कि स्पर्म का डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हाई लेवल रहना चाहिए। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कि हाउ द टेस्टोस्टेरोन लेवल इज हाई इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द सर्टोलाइज सेल्स बिकॉज ऑफ ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। वहाँ पे ABP उसको बाइंड करके रखता है एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल वहाँ पे हाई रहता है। सिक्रीशन रेट इज 4 to 9 मिलीग्राम पर DL एंड दिस नॉर्मल एडल्ट मेल यहाँ पे लिखा हुआ है। 98% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज इन प्लाज्मा इज बाउंड टू प्रोटीन। वही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ABP। 65% बाउंड टू अ ग्लोब्यूलिन, जिसमें से कि 65% इज बाउंड टू द ग्लोब्यूलिन। एंड वी नो कि वी हैव स्टडीड इन द ब्लड चैप्टर कि देयर आर प्लाज्मा हार्मोन्स एंड द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा हार्मोन्स वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स। तो उसमें एक था टू ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स। तो बिकॉज द हार्मोन आर वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर्स, तो दे विल बाइंड विद द बिग प्रोटीन्स। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आफ्टर बाइंडिंग विद द बिग प्रोटीन्स दिस दे विल नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट, और वो भी बहुत लूजली वहाँ से निकल नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट टू रिमाइंड दिस यू हैव टू गो फॉर द दैट चैप्टर प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। तो उसी में से अब आ गया ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन इज अ बिग प्रोटीन, एल्बुमिन इज अ वेरी स्मॉल प्रोटीन। तो यहाँ पे गोनाडल स्टेरॉयडल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन GBG, ठीक है, वो इसको बाइंड करता है 65%, और सेक्स स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। बाकी जो 33% है वो किससे बाइंड होता है, वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होता है। टेस्टोस्टेरोन इन एडल्ट्स, इट स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन
sustain the libido means sex desire, ठीक है, and controls the activity of the prostate gland. तो इसका एक हमको ओवरव्यू मिल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन क्या क्या करने जा रहा है, ठीक है. इन एडोलेसेंट्स, जब जो प्यूबर्टी वाली एज आ रही है, ठीक है, जहाँ पे प्यूबर्टी हो रही है, जहाँ पे मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, तो इन एडोलेसेंट्स द हार्मोन स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. Testosterone also stimulates the secretion of growth hormone, causing a growth spurt that increases height and muscle mass and deepens the voice. उस एज में देखा होगा अचानक जब 13, 14, 15, 16 के बच्चे पहुंचते हैं तो अचानक से उनकी हाइट बढ़ जाती है, अचानक से देखेंगे उनकी आवाज़ चेंज हो जा रही है. सो दीज आर बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स. टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन को थोड़ा सा स्टिमुलेट किया कि और निकलो और निकलो. तो क्या वो अचानक से जब ग्रोथ हार्मोन और निकला तो अचानक से देखा गया कि द एज ऑफ 14-15 द हाइट इज सडनली इंक्रीज. बोले अरे यार अभी तो देखा था इतना लंबा बच्चा हो गया, ठीक है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एक और हार्मोन निकलता है फ्रॉम द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड इनिबिन. कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द सर्टोलाइट सेल. क्या करता है, इट इनिबिट द FSH, ठीक है. एंड it also found in the enteral fluid in the Graafian follicle. Its function is to inhibit FSH secretion. Discussed. बायोसिंथेसिस बहुत टिपिकल है. जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उनके लिए अच्छा है इतना डिटेल में जाना. हम लोग के लिए बस खाली इतना है कि जस्ट वी हैव टू नो कि बेसिक स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल है, फिर वहाँ पे क्या क्या मेन एक एंजाइम होता है वो आता है, देन द टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स. So that we have to remind, otherwise that is not very important. Just we have to read it out. The first step in the biosynthesis involves the oxidative cleavage of the side chain of the cholesterol. Cholesterol का जो side chain होता है उसके लिए side chain cleavage enzymes होते हैं, ठीक है. वो क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं. तो क्या होगा, बच जाएगा बीच का स्ट्रक्चर. द माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम जो एंजाइम है इसको ऑक्सीडेज एज जहाँ पे भी लगेगा दैट इज द एंजाइम. With the loss of 6 carbon atoms to give pregnenolone, ठीक है. अब क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल से क्या बन गया, pregnenolone. 2 additional carbon atoms are removed by the CYP17A1, that is 17 alpha hydroxylase enzyme in the endoplasmic reticulum to yield the variety of C19 steroid, जो कि अब बनने जा रहा है, ठीक है. In addition, the 3-beta hydroxyl group is oxidized by 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase to produce androstenedione. In the final and rate-limiting step, the C17 keto group androstenedione is reduced by 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase to yield testosterone. यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बन गया. तो मतलब क्लीवेज हो रहा है, कुछ हट रहा है, कुछ जुड़ रहा है. तो देख रहे हैं सब लोग वहाँ पे बेसिकली सारे एंजाइम्स होते हैं वो वहाँ से कट करके वहाँ पे एक 17 कार्बन एटम्स बना दे रहे हैं. एंड देन आउट ऑफ दैट 19 बचेगा, 17 बचा, फिर जाके असली में हमको टेस्टोस्टेरोन मिल जाता है. So these are the steps just to show you. I have downloaded from the internet कि you can see the cholesterol is this one. Cholesterol, then pregnenolone, then 17 alpha hydroxy pregnenolone, then dehydroepiandrosterone, then androstenedione, then testosterone. Left side you can see. then 17 जब टेस्टोस्टेरोन का जब उसको बाहर निकालना है या जब उसको मेटाबॉलिज्म ख़त्म करना है तो वहाँ पे भी वो 17 बीटा एस्ट्रेडियोल है ना, एस्ट्रेडियोल करके ख़त्म हो रहा है, देख सकते हैं. दीज आर द स्टेप्स. यू कैन सी सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. दिस इज टोटल स्टेप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. देखेंगे यहाँ पे वट एवर स्टेरॉइड हार्मोन्स आर देयर इन दिस पिक्चर यू कैन वेरी वेल इजीली सी. दैट इज प्रेग्नेनोलोन कोलेस्ट्रॉल से, देन 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन, देन जो ब्लू लाइन चल रही है डिहाइड्रोएपिनेस्टेरोन, देन एंड अल्टीमेटली एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रेडियोल. बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एल्डोस्टेरोन भी बन रहा है, कॉर्टिसोल बन रहे हैं. कॉर्टिसोल जो कि हम लोग पढ़े थे कॉर्टेक्स में, दैट इज़ मे बी एंडोक्राइन का 5th और 6th लेक्चर था, वहाँ पे है. तो दैट वी हैव स्टडीड अबाउट कॉर्टिसोल and functions of cortisol. Very important function of cortisol are there. So these are the cholesterol hormones. Then this is the structure of testosterone. You can see if you count with them 1 2 3 4 5 6, then you will see at the 17th. See, this is the 17th place in which the
OH, that means hydroxyl is present. Then this is again a very complex structure, and I told you before that we don't have to go for this much biochemistry because this is very hard to remember. Just to show the picture, this is the picture of again testosterone, and its molecular structure is shown in this picture. ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए. देख लिया. Then next. So अब हम आते हैं functions of testosterone. फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो कि आता है हमारे पास 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है. इन जनरल एंड्रोजेंस नाम ही क्लियर हो रहा है, मेल जेन, तो मेल का कुछ प्रॉपर्टी जनरेट करने वाला. ठीक है. एंड्रोजेंस सच एज टेस्टोस्टेरोन प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस. इट्स ए काइंड ऑफ एनाबॉलिक हार्मोन. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस एंड दस ग्रोथ ऑफ टिश्यूज विद द एंड्रोजन रिसेप्टर्स. जिस टिश्यू के पास एंड्रोजन रिसेप्टर्स होगा उस टिश्यू में टेस्टोस्टेरोन वो अंदर जाएगा, एंड टेस्टोस्टेरोन अंदर जाके वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा. देयर विल बी न्यू प्रोटीन सिंथेसिस. ओके. सो टेस्टोस्टेरोन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हैविंग विरिलिज्म एंड एनाबॉलिक इफेक्ट, यानी मेल एंड द एनाबॉलिक इफेक्ट. Though these categorical descriptions are also somewhat arbitrary, as there is a great deal of mutual overlap between them. Anabolic effect. एनाबॉलिक में मीन्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. सो इट इंक्लूड ग्रोथ ऑफ मसल मास, क्योंकि प्रोटीन बना, प्रोटीन से मसल बना तो मसल मास इंक्रीज हो रहा है. स्ट्रेंथ, इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, एंड स्टिमुलेशन ऑफ लीनियर ग्रोथ एंड बोन मैचुरेशन. अचानक से जो लंबाई बढ़ती है, दैट इज लीनियर ग्रोथ ऑफ द मेल चाइल्ड बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट. देन एंड्रोजेनिक इफेक्ट मीन्स, एंड्रो मीन्स मेल पैटर्न वाला जो इफेक्ट बात कर रहे थे हम लोग, इंक्लूड्स मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, particularly the penis, and the formation of the scrotum in the fetus, and after birth usually at puberty, क्योंकि प्यूबर्टी के समय ही अचानक से फिर से टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू होता है. अ डीपनिंग ऑफ द वॉइस, अचानक से देखेंगे कि बच्चे की आवाज़ भारी सी हो जाती है. एंड ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर सच एज beard and the axillary underarm hairs because of effect of this testosterone. Many of these fall into the category of the male secondary sex characteristics. ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि what are the secondary sex characters of male and female. Testosterone effects can also be declassified by the age of usual occurrence. The postnatal effects in both males and females, these are mostly dependent on the levels and duration of the circulating free testosterone. सर्कुलेटिंग फ्री टेस्टोस्टेरोन अगर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड है तो वो फ्री नहीं है. ठीक है. सो जो फ्री होता है वही काम करता है. तो हम लोग वो देखेंगे इसमें मेटाबॉलिक एक्शंस. मेटाबॉलिक एक्शंस वी नो कि इट इज़ मेनली द एनाबॉलिक, यानी इंक्रीज्ड BMR हो रहा है. टेस्टोस्टेरोन इज स्ट्रांगली एनाबॉलिक एंड इट इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रिवेंट्स प्रोटीन ब्रेकडाउन, हेल्प्स टू रिटेन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सल्फेट एट्सेट्रा अलॉन्ग विद वाटर. एनाबॉलिक इफेक्ट है, तो जहाँ पे भी एनाबॉलिक आप प्रोटीन या एनाबॉलिक हार्मोन देखेंगे तो वहाँ पे आप जनरली पाएंगे कि वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है एंड हेल्प्स टू रिटेन वाटर, सोडियम, पोटेशियम, ये सब वो अक्सर जो आपने हम लोग अभी तक पढ़े होंगे उसमें ऐसा मिला होगा. देन ऑन ग्रोथ, तो बिकॉज ऑफ एनाबॉलिक तो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है. तो यहाँ पे देखेंगे टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्ट ऑफ ग्रोथ. स्पर्ट, अचानक से लंबाई बढ़ना. ठीक है. सीन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इट इज मेनली ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ बोन्स. At the same time, the testosterone is also responsible for early epiphyseal closure in male, which arrests the growth in height. तो कुछ समय बाद देखते हैं अचानक से बोलते हैं 17-18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, तो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट epiphyseal क्लोजर हो जाता है एंड जो बोन की लेंथ जितनी बढ़नी थी, वट एवर द लेंथ हैज़ बीन ग्रोन, इट इज नाउ फिक्स्ड बिकॉज ऑफ द epiphyseal क्लोजर. Testosterone causes development of secondary sexual characters in boys. For example, growth of beards, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, axillary hair, pubic hair, temporal recession of the hairline and so on. It brings about all the pubertal changes in the boys. It is responsible for growth of the external genitalia during adolescence. In adults, it maintains the
sex organs. It is responsible for the development of male psychology, यानी male psyche, जो aggressive behavior, और जो आप देखेंगे कि there is a difference between a male and female behavior. This testosterone is responsible for the male psychology. अगर किसी फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकलता है तो वहाँ पे भी देखेंगे वहाँ पे मेल पैटर्न आने लगता है, उसकी जो साइकी है, उसका जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट है, इट बिकम्स अ मेल लाइक. टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेल गैमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, and for this a very high local concentration of testosterone is maintained inside the seminiferous tubules. It is also responsible for the motility of the sperms. All these we have studied in the previous lesson. Then it stimulates erythropoiesis. erythropoiesis पढ़ा है ना, क्या होता है? erythropoiesis यानी erythro means red blood, poiesis means banana, ठीक है. तो रेड ब्लड का फॉर्मेशन, वी हैव स्टडीड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. तो इन दैट वी हैव स्टडीड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में हमने ग्रोथ हार्मोन देखा था, हमने बहुत कुछ देखा था, उसमें ये भी था टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द इराइथ्रोपोइसिस, एंड दैट्स वाई इन मेल्स द नंबर ऑफ आरबीसीज आर मोर एज कंपेयर टू द फीमेल्स, है ना. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल लिबिडो पर्टिकुलरली एट द प्यूबर्टी एंड ऑल्सो इन एडल्ट्स. इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब अभी बेबी पैदा नहीं हुआ है, उस समय क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द फीटल टेस्टिस एक्ट्स ऑन फीटल ब्रेन टू डेवलप द मेल साइकी. इट कॉजेस सेक्स डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन डक्ट्स इनटू एपिडाइडिमिस. यहाँ पे देखिए वोल्फियन ड्यूएट्स लिखा हुआ है. एक्चुअली लेक्चर बनाने से पहले भी मेरे को ये डुएट दिखाई पड़ा था, बट अब बार बार कौन खोले और कौन इसको सही करे, बहुत इसमें थोड़ा सा आलस आ गया, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है. वोल्फियन डक्ट्स का डुएट दिखाई पड़ रहा है इनटू एपिडाइडिमिस. वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल फीटस ऑल्सो डेवलप अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. तो वहाँ पे जो मेल साइकी इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ इट एक्ट्स. तो स्टेरॉयड हार्मोन है, एंड जब मैंने एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इफ़ इट इज़ अ प्रोटीन हार्मोन इट विल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट, एंड इफ इट इज़ अ स्टेरॉयड हार्मोन तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज स्लाइटली डिफरेंट. बिकॉज प्रोटीन हार्मोन है तो उसको सेल के अंदर घुसने के लिए टू गो इनसाइड द सेल इट नीड्स रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. बट इफ इट इज ए स्टेरॉयड हार्मोन तो इट इज अ लिपिड सॉल्युबल, इट विल गो वेरी इजीली इनसाइड द सेल. तो इनसाइड द सेल जाने के बाद इसके अंदर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे बाइंड करता है, तब काम करता है द स्टेरॉयड हार्मोन. सो डेफिनेटली यहाँ पे वही लिखा हुआ देखिए, लाइक ऑल द अदर स्टेरॉयड हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन हैज इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स थ्रू विच इट रेगुलेट्स इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस. जब वहाँ पे अंदर गया तो वहाँ पे जो वहाँ का जो सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वहाँ से बाइंड किया, उसको प्रोटीन का सिंथेसिस का उसने सिग्नल्स दिया, देन द मैसेंजर आरएनए आया. दैट ऑल वी हैव डिस्कस इन द एंडोक्राइन पार्ट, तो नो नीड टू अगेन रिपीट इट, जस्ट गो फॉर दैट लेक्चर. तो टेस्टोस्टेरोन इज इन सम टारगेट ऑर्गन्स इज कन्वर्टेड इनटू डिहाइड्रो testosterone DHT by the enzyme 5-alpha reductase. So testosterone is acting as testosterone, and in some target cells it will go inside and it will convert it into dihydrotestosterone DTH. क्यों बताना है? Because DHT, this dihydrotestosterone is responsible for the development of prostate, growth of facial, axillary and pubic hairs, temporal recession of hair. It also causes development of male external genitalia and probably causes growth of penis at puberty. It is because of DHT. फिर से सुन लीजिए, development of prostate, growth of facial, axillary and pubic hairs, temporal recession of hair, and development of male external genitalia and probably causes growth of penis at puberty. Puberty के समय penis की growth हो रही है.
अगर DHT नहीं हो तो वो ग्रोथ नहीं होती, अभी आगे देखेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एनाबॉलिक इफेक्ट्स, यानी जो प्रोटीन बन रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, एंड ग्रोथ ऑफ पेनिस, मेल लिबिडो, डेवलपमेंट ऑफ वोल्फियन सिस्टम इनटू मेल इंटरनल जेनेटेलिया आर ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ। ठीक है, सो जो टेस्टोस्टेरोन का जो मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसका फंक्शन ये सब था। Then this is just a picture to show you. This is I have taken from the internet, which was Ganong's 24th edition. Testis से निकला testosterone, and then inside the cell you can see whenever it is going inside the cell, it may act as a testosterone or it may act as a dihydrotestosterone. Depends upon the presence of enzyme. ठीक है, so if it is testosterone itself, तो you can see the from top gonadotropin regulation, यानी GnRH को भी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन करा रहा है टेस्टोस्टेरोन, एंड वोल्फियन स्टिमुलेशन एंड एक्सटर्नल विरिलाइजेशन। दीज ऑल द इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। एंड अगर DHT की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल विरिलाइजेशन प्लस द सेक्सुअल मैचुरेशन एट प्यूबर्टी बिकॉज ऑफ DHT इटसेल्फ। समरी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब एजेस की बात करें तो इन फीटस क्या क्या था वहाँ पे, बिकॉज अभी इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात हो रही है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ मेल जेनिटल ट्रैक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बिकॉज ऑफ DHT कन्वर्जन, एंड डिसेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जो डिसेंट होता है बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। अगर टेस्टोस्टेरोन प्रॉपर नहीं है, टेस्टिस डिसेंट नहीं होता है, वो भी एक कंडीशन होती है, वी विल सी लेटर। At puberty, growth and maturation of male reproductive system, increase the libido, development of secondary sexual characteristics, and bone growth. On reproduction, spermatogenesis increases libido, maintains secondary sexual characters, regulation of gonadotropin, and secretion of hypothalamus pituitary testis, जो एक्सिस है उसको रेगुलेट करता है, या इन द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। अदर इफेक्ट्स में क्या हुआ, इरेथ्रोपोइसिस, दैट मीन्स इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीशन एंड द प्रोटीन एनाबॉलिक फंक्शंस। अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें, इन कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज अगर नहीं है तो इनसाइड द सेल, तो टेस्टोस्टेरोन विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द DHT, दैट मीन्स डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। एंड नाउ वी नो द फंक्शन ऑफ DHT कि जो डेवलपमेंट हो रहा था वो अब नहीं हुआ, तो क्या होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ मेल जेनेटेलिया डज नॉट अकर एंड फीमेल जेनेटेलिया परसिस्ट। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इनबॉर्न देखा जाए तो देर इज अ टेंडेंसी दैट देर विल एवरी चाइल्ड विल डेवलप इनटू फीमेल। ठीक है, तो जो वोल्फियन डक्ट सिस्टम और जो हम लोग वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, मुलेरियन डक्ट सिस्टम, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा था बिकॉज ऑफ दिस ओनली, टेस्टोस्टेरोन आया एंड देन वी हैव सीन द SRY जीन्स देयर। सो अगर वहाँ पे अभी ये हार्मोन नहीं निकला तो क्या होगा, द फीमेल जेनेटालिया विल परसिस्ट, द बॉय इज रेज्ड एज ए गर्ल, सब्सिक्वेंटली एट प्यूबर्टी देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द क्लाइटोरिस ड्यू टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन एंड द गर्ल इज नाउ चेंज इनटू बॉय। ठीक है, सडनली देखेंगे वहाँ पे चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि DHT वहाँ पे नहीं था। Testicular feminizing syndrome. This condition develops due to congenital lack of androgen receptors. अब एंड्रोजन तो प्रॉपर निकल रहा है लेकिन एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही नहीं है, तो क्या होगा, देयर आर testis and testosterone secretion is also normal, but the testosterone cannot act due to lack of receptors. So there is a development of female genitalia and there is also enlargement of the breasts. यहाँ पे देखेंगे कि there is a slight balance between testosterone and estrogen. Both male and females are having both the hormones. At the age of 50 to 55, 60 ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन थोड़ा सा कम होने लगता है, देन एट दिस स्टेज वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा सा बढ़ेगा एंड देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया सिचुएशन विल अराइज. So we have to think about the hormonal imbalance. If it is in case of females, if it is estrogen progesterone level is low and the testosterone level is high, then what will happen? Now we understand. ठीक है.
So these are the hormonal imbalance. Now this is the cryptorchidism that I told you, that if the testis develops in the abdominal cavity and then descend normally to the scrotum during 7th month of the intrauterine life. In some cases there is a failure of descent of the testis cannot be felt, यानी टेस्टिस अब एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आके जो बाहर आना है वो नहीं आता है, इसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस, नहीं हुआ, एज नॉट इनसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम में नहीं आया, हेंस कॉल्ड क्रिप्टोऑर्काइडिज्म. देयर इज नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन बट स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट अकर. क्यों नहीं हो रही है, पहले लेक्चर में जाइए. क्यों? क्योंकि टेस्टिस को बाहर रखा ही इसलिए गया था कि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहे, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस नीड्स 32 डिग्री टेम्परेचर, but inside the body it is 37. So sperm development will not occur in case of high heat of the body. That's why the person will suffer from less sperm count, or there will be no spermatogenesis. These cases are thus associated with normal male features, but there is a sterility and the individual usually suffers from testicular malignancy later on. इफेक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिस. अगर टेस्टिस रिमूव कर दिया जाए तो अगर इसमें दो केस हो सकता है कि बिफोर प्यूबर्टी है ना, आफ्टर प्यूबर्टी. बिफोर प्यूबर्टी इफ टेस्टिस इज रिमूव देयर विल बी स्टेरिलिटी. देयर इज स्टेरिलिटी, नो प्यूबर्टल चेंजेस ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डू नॉट डेवलप. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट ग्रो. फीमेल पैटर्न ऑफ बॉडी विदाउट फेशियल हेयर्स. देयर इज डिपोजिशन ऑफ फैट इन द बटक एंड इन द ब्रेस्ट. मसल्स आर सॉफ्ट एंड पुअरली डेवलप. थोड़ा सा जो फीमेल पैटर्न वाला मिल रहा है, ठीक है, वैसा मिलेगा. लिबिडो इज एब्सेंट ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन. एपिफाइजियल क्लोजर डज नॉट अकर एंड देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ जाइगेंटिज्म. लिबिडो इज एब्सेंट. टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिबिडो. एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा था इन दैट द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. तो वहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात मतलब कह सकते हैं दिखाई पड़ी कि दोज मेल्स वो आर हैविंग इंक्रीज द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो देयर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स इज देयर. एंड दोज ह्यूमन्स मेल्स विच आर हैविंग नॉर्मल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो वहाँ पे एक द रिलेशनशिप ऑफ लव एंड हार्मनी इज मेंटेन्ड. वहाँ पे शादी मेंटेन रहती है. लेकिन जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है तो वहाँ पे इंक्रीज लिबिडो ज़्यादा है, तो वो होता नहीं कि मतलब कि ज़्यादा हार्मोन निकल रहा है तो वहाँ पे इंक्रीज लिबिडो इज द कॉज ऑफ डिवोर्स. एक रिसर्च पेपर है, जस्ट गो एंड गूगल सर्च दैट रिसर्च पेपर, द इफेक्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. अच्छा, ड्यू टू लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन एपिफाइजियल क्लोजर नहीं हुआ, तो देन द टेंडेंसी ऑफ जाइगेंटिज्म इज देयर. आफ्टर प्यूबर्टी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स persist but there is atrophy of the sexual organs. Sexual desire is lost. Frequency of penile erection is depressed very much, but ability for intercourse persists. General body physiology is not affected. There is sterility, वहाँ पे रहेगी. Lack of ability for intercourse due to failure of proper erection of penis is called impotence. And lack of ability to reproduce is called sterility. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है स्टेरिलिटी एंड इम्पोटेंस में. स्टेरिलिटी मीन्स स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या स्पर्म मोटाइल नहीं है, या स्पर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो द पर्सन विल सफर फ्रॉम स्टेरिलिटी. बट स्पर्म काउंट अच्छा है, स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है, बट द पर्सन इज हैविंग लैक ऑफ ability for intercourse due to failure of proper erection, then it is called impotence. So I hope this part is now clear to you, testosterone, and in the next session we will start the reproductive system female. Till then, keep studying, stay safe, stay healthy. Thanks, have a nice day. Okay, bye bye.